is The Tutors and its subsidiary Commerce Edge. We are going to take lecture number 2 of SP of chapter number 1 Introduction to Corporate Finance. Topic we are going to cover today is जितना भी होगा देखेंगे 30 मिनट का लेक्चर लेने की कोशिश करूँगा मैं आज, ठीक है. सो उसमें हम लोग जितना भी कवर कर सकते उतना करेंगे. सो देयर इज़ नॉट अ स्पेसिफिक टॉप, मतलब ऐसा कोई कि आज हम लोग इतना ही लेंगे, जैसे 2 पेज है 1 पेज है, इतना कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है. टाइम इज़ द मेजर थिंग टुडे. वी आर गोइंग टू टेक 30 मिनट्स लेक्चर. मैंने सोचा कि आज एक ही लेक्चर लेना है तो आई विल टेक अ बिग लेक्चर, ठीक है. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द इंट्रोडक्शन, मीनिंग, definition, about financial decisions and investment decisions. In this lecture we are going to start with the importance of corporate finance. So there are 7 points. There are actually 10 points. We are going to cover 7 points, out of which you have to write 5 to 6 points. Okay, so let us get started with first point: helps in decision making. Most of the important decisions of business enterprise are determined on the basis of availability of funds. It is difficult to perform any function of business enterprise independently without finance. See, कोई भी फंक्शन अगर हम लोग कैरी आउट करते हैं, से फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर डूइंग एनी फंक्शन, जो कोई हम लोग कंपनी चला रहे हैं और उसमें रॉ मटेरियल है या कोई भी डेली एक्सपेंसेस जो भी है हमारे, वो तब भी हम लोग इनकर कर सकते हैं, तब भी हम लोग उसको यू कैन से दैट एग्जीक्यूट कर सकते हैं इफ़ वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ फंड इन आवर कंपनी. इफ़ देयर इज़ नॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड, सो देयर कैन बी हिंड्रेंस और यू कैन से दैट सीज हो सकता है. अपना जो कंपनी का जो एफिशिएंसी है वो सीज हो सकती है. कंपनी स्मूथली काम नहीं कर पाएगी इफ़ वी डोंट हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ फंड इन आवर कंपनी और business organization. So for that particular function we need proper amount of corporate funds, corporate finance. Okay, second point is helps in raising capital for project. Whenever a business firm wants to start a new venture, it needs to raise capital. Business firms can raise funds by issuing shares, ventures, bonds, even by taking loans from the banks. अभी मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को बताया था 10 करोड़ वाला जो एग्जांपल बताया था, उसमें हम लोगों ने 7 करोड़ जो है वो ओन्ड फंड से जनरेट किए थे, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह से, और 3 करोड़ जो है वो बैंक लोन, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स वगैरह वो सबसे हम लोगों ने फंड रेज किया था. So that particular example it has been used over here. So what they are telling, if the company wants to start any new venture, कोई नई चीज़ चालू करनी है कंपनी को, then company will require huge amount of funds, huge amount of capital, huge amount of finance. So in order to cope up with the efficiency of starting new venture, company needs proper amount of funding, company needs proper amount of money, company needs proper amount of capital or finance, you can say whatever you want to say, ठीक है. Third point, helps in research and development. Research and development must be undertaken for the growth and expansion of business. Detailed technical work is essential for the execution of projects. Research and development is lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. This would require continuous financial support. Now research and development. See, research and development is, you can say that it does not help you directly to make any new product, or you can say make a new change, ठीक है. कैसे वो बताता हूँ मैं तुम लोग को. एक चॉकलेट है जिसका नाम है इक्लेयर, ठीक है. ये चॉकलेट समवेयर अराउंड 20 इयर्स से मार्केट में रूल कर रही थी, मैंने बोला रूल कर रही थी फॉर इट्स बेस्ट टेस्ट इन 1 रुपीज़. एक चॉकलेट लो, मुंह में डालो, थोड़ा सा चूसो, उसको चबाओ और फिर उसके बाद उसमें से कैडबरी निकलती थी एंड इट यूज्ड टू बी अ वेरी मेलोडियस, ऐसा सेंसेशन होता था दिमाग में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ जाते थे, पूरे बॉडी एकदम खुश हो जाती थी. पर वो रूल करना बंद कर दी जस्ट बिकॉज उसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स आ गए. पर ये ओरिजिनल इक्लेयर अगर तुमको खाना है तो वो एक ही कंपनी बनाती है, वो है कैडबरी कंपनी, ठीक है, जिसका ये आता है ना डेयरी मिल्क वगैरह. तो इक्लेयर जो है ये बेसिकली कैडबरी कंपनी की चॉकलेट है और उसके अल्टरनेटिव्स में
एल्पेनलीबे वाले ने, पार्ले वाले ने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, देयर आर सेवरल कंपनीज हु स्टार्टेड इक्लेयर, ठीक है, थोड़े डिफरेंट नेम से, डबल सी डाल दिया, किसी ने एक एस डाल दिया, किसी ने ई को कैपिटल रख दिया, किसी ने ई को छोटा रख दिया, बट इनके सिमिलर, इनके जैसा नाम नहीं उन्होंने, सेम टू सेम नहीं, सिमिलर लगाया, सेम नहीं लगाया, सिमिलर लगाया इक्लेयर उन्होंने, बट टेस्ट वैसा नहीं था, टेस्ट वैसा नहीं था, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई थी, या हो सकता है ये इक्लेयर से ज़्यादा उनका अच्छा टेस्ट था, बट ये वाले टेस्ट को लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए। सो व्हाट हैपेंस हियर इज इक्लेयर की मार्केट की कंडीशन बहुत खराब हो गई, जहां लोग रोज 100 इक्लेयर खरीदते थे, अब सिर्फ 50 इक्लेयर खरीद रहे या 30 इक्लेयर खरीद रहे, क्योंकि बाकी सब कंपनीज के भी इक्लेयर बिक रहे हैं ना मार्केट में भी। सो व्हाट हैपेंस हियर इज इक्लेयर ने सोचा कि हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट फिर से बिकना चालू हो। इक्लेयर वाले ने शायद उस टाइम पहली बार अपनी चॉकलेट खुद खाया होगा और उसको पता चला कि ये चॉकलेट जो है वो एक, उसमें एक ड्रॉबैक है कि ये चॉकलेट दांत में चिपकती है, ठीक है। तुम लोग बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो यार, दांत में चिपकती है, इक्लेयर किधर जा रहे हो। कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, वी आर स्पीकिंग अबाउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उन्होंने रिसर्च किया कि हमारा प्रोडक्ट फिर से वापस से कैसे, उन्होंने रिसर्च किया कि हम कुछ नया कैसे लाए, हमारे सेम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ नया कैसे लाए। उन्होंने कुछ एक थोड़ा सा अंदर कुछ यू कैन से डैट उनका जो इंग्रेडिएंट्स था उसमें चेंजेस किया होगा, जिससे अब वो दांत में नहीं चिपक रही थी या कम चिपक रही है, अभी भी चिपकती है बट कम चिपकती है। एंड सेकेंड थिंग, उन्होंने वो प्रोडक्ट थोड़ा सा एनलार्ज करके 2 रुपये में बेचना चालू किया। कि पहले इक्लेयर 1 रुपये की आती थी, अब 2 रुपये की आती है। पहले उसका जो रैपर था वो शाइनी था, अब थोड़ा सा रॉ टाइप दिखता है, एकदम डस्की, प्लस इट इज़ वेरी कलरफुल, बहुत अच्छा नेवी ब्लू कलर है। अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बनाया, उसको रिसर्च किया और उसको डेवलप किया उसके हिसाब से, और फिर प्रोडक्ट में लॉन्च किया। नाउ इक्लेयर इज अगेन रूलिंग द मार्केट। बहुत ज़्यादा, मैं तो देखो आई एम ए टीचर एंड वेन एवर अ स्टूडेंट कम्स कि सर मेरा बर्थडे है यार चॉकलेट लो, एंड इफ आई फाइंड इक्लेयर आई गेट वेरी हैप्पी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, so this is called research and development. Research and development is indirectly related to the development of your company itself. It is indirectly related to the fundraising of the company. ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इक्लेयर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट तभी पॉसिबल था जब उनके पास प्रॉपर फंडिंग होगी। अगर उनके पास प्रॉपर मनी होगा, प्रॉपर एम्पल अमाउंट ऑफ पैसा होगा, तो लोग क्या करेंगे, नए रैपर्स बना सकते हैं, साइज एनलार्ज करने का मोल्ड लेके आ सकते हैं, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को अडॉप्ट कर सकते हैं और लोग रख सकते हैं। सबको पैसा लगता है ना, फ्री में थोड़ी होता है। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल थी जब उनके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ फंडिंग थी, जब उनके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस था। इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमिंग टू 4th पॉइंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट यू राइट नाउ। इक्लेयर वाला एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल था, बहुत अच्छा एग्जांपल था। मैं हर बैच को वही एग्जांपल दूंगा। हेल्प्स इन smooth running of business. Now this is very easy point, no need to read about that particular one. What this particular point says that कि business जो है वो स्मूथली रन करने के लिए, कोई भी काम तुमको स्मूथली करने के लिए ऑब्वियसली एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो है पैसा। If you don't have ample amount of money, whatever you are doing, समझो से फॉर एग्जाम्पल मैं हर साल एक जगह पे जाता हूँ, इफ़ माई स्टूडेंट्स जाता हूँ, मतलब अगर सब मेरे स्टूडेंट समझ गए कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग अबाउट गोवा। ठीक है, मैं हर साल गोवा जाता हूँ, तो आई ओनली व्हेन आई विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, एक बहुत ज़्यादा मतलब यू कैन से दैट अनप्लान्ड चीज़ थी वो, नॉट अनप्लान्ड, प्लानिंग की थी कि गोवा जाना है, बट मेरे को पता नहीं था कि कितना पैसा लेके जाना है। सो आई टू 5,000 रुपीज़ फॉर 3 days। ठीक है, व्हाट हैपेंड ओवर देयर इज, खाना खाए हम लोग ने, रूम का रेंट दिया और वहाँ पर जो व्हीकल ली थी उसका रेंट दिया और पेट्रोल भराया और 5,000 रुपये उसमें ही खत्म हो गया। I didn't do anything except that। ठीक है, ये 4 चीज़ें की जो ज़रूरत थी, बट उसके अलावा मैंने और कुछ किया नहीं वहाँ पर गोवा में। तो मैंने रियलाइज़ किया कि अपने पास क्या चीज़ की कमी है, फंड की कमी है। अपने पास क्या चीज़ की कमी है, फंड की कमी है, पैसे की कमी है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लो है ट्रिप का वो नहीं आ पा रहा है। वी आर जस्ट मूविंग ऑन दी स्कूटी एंड सीइंग प्लेसेस हियर एंड देयर, बीचेस वगैरह देख रहे, बट हम लोग उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी।
एंड देन आफ्टर दैट जब मैं फिर से गोवा गया 8 दिन के लिए गया था, बट 8 दिन के लिए मैंने नहीं करके 25,000 रुपीज़ लेके गया था, 25,000 रुपया, और मैं बचा के लेकर आया था, 15-20 हज़ार रुपये में ही हो गया था, पैसा बच के आया, बट बहुत ज़्यादा एंजॉय करने मिला, बहुत ज़्यादा, मतलब दिल खोल के हम लोगों ने खर्चा किया और साल भर पैसा जमा किए थे, तो इट वॉज अ नाइस थिंग, ठीक है। सो वाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, दिस सिंपल थिंग इज एप्लीकेबल टू कंपनीज एज वेल, ठीक है। ये कंपनीज में भी एप्लीकेबल होती है। कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर पैसे की बात कर रहे हैं हम लोग, पैसा बहुत ज़्यादा जरूरी है कोई भी बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए। इफ़ यू डोंट हैव मनी, इफ यू हैव लेस मनी, योर स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी कैन गेट हिंड्रेंस। योर कंपनी विल नॉट फंक्शन स्मूथली इफ यू डोंट हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी विथ योरसेल्फ। समझ में आया? ओके, आई होप पीपल हैव अंडरस्टूड। सो नाउ फिफ्थ पॉइंट, brings coordination between various activities. Now brings coordination, अभी ये स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा तो ऑब्वियसली हर एक फंक्शन जो है, से फॉर एग्जांपल कंपनी में सर्टेन डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है समझो इक्लेयर का एग्जांपल ले लो, एक होता है कन्वर्टिंग raw material into finished goods। उसको समझो इक्लेयर के चॉकलेट को पहले उन लोग ने एक लिक्विडिश फॉर्म दिया, फिर उसको मोल्ड में डाला, मोल्ड में डालने के बाद उसको फिर यू कैन से दैट जब शेप आ गया तो फिर रैपर में उसको पैक किया, रैपर में, ठीक है, रैपिंग की उसकी, रैपिंग के बाद उसके ऊपर लेबलिंग किया, या समझो लेबलिंग पहले हो गई थी, फिर भी हम लोग लेबलिंग अभी इधर लिख देते हैं। लेबलिंग मतलब उसके ऊपर जो डिटेल्स वगैरह रहते हैं वो, उसके बाद उसको 100 पीसेस ऑफ चॉकलेट्स को उन लोग ने एक पैकेट में डाला, पैकेट ऑफ 100, उसके बाद उसको एक बॉक्स में डाला, बॉक्स में डालने के बाद ट्रक में डाल के होलसेलर के पास लेके चले गए या रिटेलर के पास लेके चले गए, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस एक चॉकलेट बनाने के लिए है। एक इंसान ही पूरा उसको लिक्विड फॉर्म बना के मोल्ड में डाल के रैप करके लेबल करके ट्रक में डाल के खुद छोड़ के नहीं आता है। इसकी अलग टीम है, इसकी अलग टीम है, इसकी अलग टीम है, सब डिपार्टमेंट्स अलग अलग है। If we are lacking in proper amount of funding for our company, if we don't have proper amount of funding for our company, कहीं ना कहीं अगर समझो कोई पर्टिकुलर लेवल या कोई पर्टिकुलर यू कैन से दैट, ये वर्ड्स भूल जाता हूँ मैं लेक्चर में, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अगर समझो पैसे की कमी से रुक गया, समझो से फॉर एग्जांपल लेबलिंग वाला पार्ट रुक गया, अगर लेबलिंग वाला पार्ट रुक गया तो इनका जो काम है ये तो होता रहेगा, बट यहाँ पर लेबलिंग के पास ये सबके काम जब हो रहे हैं तो इनके पास पूरा प्रोडक्ट जमा होते जा रहा है। जब तक ये लेबलिंग नहीं करेंगे आगे का प्रोसेस नहीं होगा, बट लेबलिंग के ऊपर वर्कलोड बढ़ते जा रहा है और ये आगे का काम तो ऑब्वियसली ये काम नहीं हुआ तो रुक ही जाएगा। अल्टीमेटली ड्यू टू वन ऑब्स्ट्रक्शन द होल ट्रैक और द लाइन यू कैन से गॉट सीज्ड, रुक गया, वो उनका काम रुक गया, जस्ट बिकॉज दे डिडंट हैव द एक्चुअल थिंग which is very much important to run a company, what is called as corporate finance। ओके, समझ में आया? स्मूथ फ्लो के लिए, कंपनी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट को प्रॉपरली टाइम टू टाइम काम करने के लिए यू नीड कॉर्पोरेट फाइनेंस। Sixth point, promotes expansion and diversification। promotes expansion and diversification। Before that we'll erase the board, erase, rub, wipe out, जो भी बोलना है बोल सकते हो तुम लोग, जो तुम कर। ओके, सो क्या पढ़ा रहा था मैं? एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन।
एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन क्या बोलता है यहाँ पर कि तुम लोग समझो। पहले तो एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन में फर्क समझ लो। एक्सपेंशन क्या होता है और डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बट दोनों सेम वर्ड लगते हैं, सिमिलर वर्ड्स लगते हैं, बट कहीं ना कहीं उसका मीनिंग सिमिलर या सेम नहीं होता है। सेम जैसा कुछ नहीं होता है, सिमिलर ही है, दोनों अलग अलग स्पेलिंग से प्रोनाउंस किए जाते हैं। ओके, एक्सपेंशन मतलब क्या और डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, से फॉर एग्जांपल इफ आई एम प्रोड्यूसिंग दिस मार्कर, अगर मैं मार्कर प्रोड्यूस करता हूँ और मार्कर की इंक बनाता हूँ, ठीक है, और इंक बॉटल भी बेचता हूँ उसके साथ। अगर मैंने इंक बॉटल और मार्कर बेच के बहुत पैसा कमा लिया है, एक कंपनी मैंने सेटअप की, समझो नाला सुपारा या वसई तालुका में कहीं, और बहुत पैसा कमा लिया, अब मेरे पास बहुत सारा पैसा हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यही कंपनी मैं मुंबई में भी खोलूँ। तो मैंने क्या किया, पहले कहाँ पर कंपनी खोली, समझो वसई में खोला मैंने कंपनी, उसके बाद मैंने सेम कंपनी, सिमिलर कंपनी मुंबई में भी खोल दिया। ऑब्वियसली अभी मैंने जहां पर लिखा है उसी का मतलब होगा ये एग्जाम्पल, ठीक है। वसई में मैंने मार्कर और मार्कर की इंक बनाया, अब मुंबई में भी मैं मार्कर और मार्कर की इंक बना रहा हूँ। उसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। के मैं सिमिलर, यहाँ पर सेम वर्ड यूज करेंगे, सिमिलर यूज करेंगे। मैं सेम प्रोडक्ट की एक और कंपनी खोल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। आई एम एक्सपैंडिंग माई बिजनेस, आई एम एक्सपैंडिंग माई बिजनेस। बट इफ मैंने वसई में ही, ये तो इधर क्यों रख कर रहे हैं हम लोग, बट इफ मैंने वसई में ही क्या किया, अभी मैं क्या बना रहा था, मार्कर और इंक बना रहा था। एक और चीज समझ लेते, ज्योमेट्री बॉक्स बनाना चालू कर। अभी मैंने एक और बाजू में मेरी कंपनी चालू की है, विच प्रोड्यूसेस ज्योमेट्री बॉक्सेस, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस पेंसिल्स, शार्पनर्स एंड इरेजर्स वगैरह वो सब। अब मेरा प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो गया है। पहले मेरा प्रोडक्ट सेम था, उसी को मैंने बढ़ाया, अब मेरे प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, वसई में ही मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट विथ सेम ब्रांड चालू किया मैंने। सो वो हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन। इफ आई एम प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिंग माई बिजनेस विद दैट पर्टिकुलर सेम प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। बट इफ आई एम चेंजिंग द रूट ऑफ माई बिजनेस, अगर समझो एक ट्रैक पे ट्रेन, दो ट्रेन एक साथ जा रही है, ठीक है, सीधा सीधा निकल गई और ट्रैक्स बढ़ते गए और ट्रेन उनके साथ जुड़ती गई, तो वो एक्सपेंशन। बट अगर समझो जाते जाते ट्रेन ऐसा अलग कोई एक रूट पे चली गई और एक ट्रेन इधर चली गई, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्स, वैरायटी, डाइवर्स का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है। सो आई होप पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से विद दीस वर्ड्स। अब ये तभी ही पॉसिबल है, मैंने तुम लोग को दोनों एग्जांपल देने के टाइम पे एक चीज बोला कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो गया, तब जाके हमने ये पर्टिकुलर चीज की, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। सो इफ यू डोंट हैव proper amount of finance, proper amount of corporate finance, you cannot do expansion and diversification in your company. I hope you people are understanding what I'm teaching you right now. 7th point is managing risk. Okay, देखो फिर से कोई एक लाइव एग्जांपल लेके हम लोग कुछ करेंगे, फिर उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। अगेन चलो गोवा जाके आते हैं। समझो मैं वहाँ पर गोवा में चला गया, ठीक है। गोवा जाने के बाद मैंने बहुत सारा पैसा लेके गया, आई वेंट देयर। समझो 7-8 दिन के लिए हम लोग गए, और मैं 7-8 दिन के हिसाब से नहीं, कम से कम 15-20 दिन का पैसा लेके गया हूँ मैं। अब समझो क्या हुआ, गोवा में कुछ ऐसा हो गया जिससे से फॉर एग्जाम्पल हमारा प्लान चेंज हो गया कि हम लोग गोवा के बाद आगे गोकर्णा जाएंगे। गोकर्णा इज समवेयर अराउंड कर्नाटका केरला बॉर्डर। गोकर्णा भी एक कोस्टल प्लेस है जहाँ पर गोवा जैसा ही वाइब्स है, पर बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत सुकून है वहाँ पर, ज़्यादा आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। बट हम लोग ने सोचा कि हम लोग गोकर्णा भी जाएंगे। क्या हुआ, यहाँ पर प्लान चेंज हो गया। क्या हो गया, प्लान चेंज हो गया, थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया कि पैसा कम पड़ सकता है। क्या हो गया, थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया कि यहाँ पर पैसा कम पड़ सकता है। बट क्या हुआ, दिन चेंज नहीं हुआ। हमने जो 7 दिन गोवा में बिताने का सोचा था, उसमें 3 दिन गोवा में रहेंगे, 3 दिन गोकर्णा में रहेंगे, 1 दिन ट्रैवलिंग में बिताएंगे।
3 दिन गोवा में रहे, 3 दिन गोकर्णा में रहे, पैसा उतना ही खर्चा हुआ या थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो गया। अब थोड़ा सा जो ज़्यादा खर्चा हो गया, वाई इट वॉज पॉसिबल कि मैं थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्चा कर सकता था, बिकॉज आई हैड एम्पल अमाउंट ऑफ फाइनेंस विद मी, आई हैड एम्पल अमाउंट ऑफ फंड और मनी और वट एवर यू वांट टू से, वो मेरे पास ज़्यादा था। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा रिस्क जो है वो मैनेज हो गया। ठीक है, इफ यू हैव प्रॉपर अमाउंट ऑफ फाइनेंस और फंड और मनी और कैपिटल इन योर कंपनी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ योर कंपनी, दैट मीन्स यू कैन टैकल एनी टाइप ऑफ रिस्क विच आर कमिंग इन योर वे। समझ में आ रहा है? कोई भी रिस्क को तुम लोग टैकल कर सकते हो इजीली इफ योर कंपनी हैज एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। पैसा है तो सब कुछ है। ठीक है, पैसा है तो मुमकिन है, बाकी और कोई है तो मुमकिन है कि नहीं, आइडल। So here we complete with 7 points of corporate finance, capital requirement. I hope तुम लोग को समझ में आया है मैंने क्या सिखाया है। 7 points हम लोग ने पढ़े। पहला पॉइंट था हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, सेकंड इज हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म्स, fifth is bring coordination between various activities, sixth we studied promotes expansion and diversification, seventh point we studied about managing risk, and now we are moving towards 1.3 capital requirements. Okay, so let us get started with the second part of the lecture. When a business entrepreneur conceives an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of the idea is investigated. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. The first and foremost step is to take the decision of amount of capital requirement to start and run the business. This task has to be performed with utmost care. Therefore, financial plans should be drafted keeping in mind present and future requirements of the business. Thus, while deciding about the volume of the capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital requirement and working capital requirement. We shall now discuss both the aspects. अब तुम लोग बोलोगे सर क्या पढ़े, अपने कुछ समझा ही नहीं। उसी के लिए तो हम आए हैं यहाँ पर, समझाएंगे तुमको। डस्टर किधर गया हो? ये पहले वाइट हुआ करता था, ऐसा कुछ नहीं है, पहले वाइट हुआ करता था, हमने ब्लू वाले मार्कर्स को पोंछ कर इसको ब्लू कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, पहले से ही ब्लू था। हम लोग साजिश है वो कि ब्लू वाले रुमाल से ही पोंछेंगे तो गंदा नहीं दिखता, ब्लू कलर के मार्कर को उससे पोंछेंगे तो वो गंदा नहीं दिखता। ठीक है, See, I am trying my level best to make this lecture a very entertaining thing, just because घर पे बैठे हो तुम लोग, लॉकडाउन चालू है, तुम लोग पहले से ही स्ट्रेस्ड आउट हो कि तुम्हारा साल बर्बाद ना हो, तुम लोग के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। बहुत सारा रिस्क है, बाहर जाने में भी, घर पे रहने में भी बहुत ज़्यादा कंटाल आ रहा है। एक ही चीज़ है जो हम लोग लेक्चर्स देख सकते हैं, वो भी अगर बोरिंग रहेगा तो कैसे चलेगा सर? थोड़ा सा हंसाओ भी उसके साथ। तो हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। टेंशन मत लो, तुम लोग अच्छा लग रहा होगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। हम लोग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बारे में पढ़ रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स, कैपिटल रिक्वायरमेंट, वी आर स्टडीइंग अबाउट कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कैपिटल रिक्वायरमेंट उन्होंने दो चीज़ बोली है। पहले से एक चीज़ कैपिटल रिक्वायरमेंट की एक चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर देगा। कितना मस्त बनाया है। पहले हम लोग रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। चलो फिर से गोवा चलते हैं। तुम लोग गोवा जा की ट्रिप प्लान करते हो, तुमको मालूम है 8 दिन के लिए तुम लोग गोवा जा रहे हो। गोवा 8 दिन के लिए गए, तुमको जगह जगह घूमना है, यू वांट टू ईट, यू वांट टू हैव वन रूम वेर यू कैन स्टे, तुम लोग को ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस वगैरह सब तुमने मिला के कुछ समझो 8 दिन का तुमने 10,000 रुपये का बजट बनाया। कितना? 10,000 रुपीज़ का बजट बनाया। ये 10,000 रुपीज़ का जो तुमने बजट बनाया है, इस पे बहुत इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है तुमको। घर पे बैठे बैठे के हाँ ठीक है, स्कूटी का रेंट इतना होगा, स्कूटी का पेट्रोल इतना होगा, हम लोग खाना खाएंगे तो पर डे इतना कॉस्ट हो सकता है, हम लोग बाहर घूमने जाएंगे तो जो भी जगह जाएंगे घूमने को उसका चार्जेस अलग से लगेगा, रूम का रेंट अलग से लगेगा, ट्रेन में जाने का, ट्रेन में आने का, कैब्स में जाने का, कैब्स से आने का, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सब कुछ मिला के तुमने 10,000 कैलकुलेट किया। दिस इज द
दिस इज वेरी वेरी इन्वेस्टिगेटेड अमाउंट, बहुत ज़्यादा पूरा डिटेल में तुमने उसके ऊपर स्टडी करके तुमने ये डिसाइड किया कि 10,000 रुपीज इज फिजिबल, उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर रिस्क मैंने वर्ड लिखा है, यहाँ पर ये जो वर्ड है ये रिस्क इस चीज पे अप्लाई होता है कि ये 10,000 रुपया कम नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आया? यहाँ दो फैक्टर का रिस्क है, हमको 10,000 रुपीज कम नहीं पड़ना चाहिए। अगर 10,000 रुपीज कम पड़ गया और 8 दिन के बजाय 6 दिन में हमारा 10,000 रुपया खत्म होने को आ रहा है, तो हम बाकी के 2 दिन क्या करें? उधर तो हमारा कोई है नहीं। तुम लोग सर एटीएम कार्ड लेके जा सकते हो, उससे पैसा बार बार निकालते रहेंगे। समझो एटीएम कार्ड नहीं है, जस्ट एन अजम्पशन, तुमने कैश लेके गए, ठीक है, तो क्या करें? ये एक रिस्क है। सेकेंड रिस्क ये हो जाता है कि हम 8 दिन के लिए 6,000 रुपया भी लेके जा सकते थे, 6,000 रुपये में हो जाता था पूरा, पर हम 10,000 रुपये लेके गए। और हम जब 10,000 रुपये लेके गए, गाइड गई क्या? नहीं है। पर हम जब 10,000 रुपये लेके गए, हमने पूरा 10,000 रुपया खर्चा कर दिया। दो रिस्क, या तो पैसा कम नहीं पड़ना चाहिए, कम पड़ गया तो ट्रिप खराब हो जाएगी। अब पैसा ज्यादा लेके गए हो और कम में हो रहा है, बट हमने ज्यादा पैसा लेके गए तो पूरा ही उड़ा दिए। सेकेंड वाला रिस्क थोड़ा छोटा लगता है क्योंकि तुम लोग कमाते नहीं हो अभी, पर दैट इज ऑल्सो अ लॉस, दैट इज ऑल्सो अ लॉस। जहाँ 6,000 में काम हो रहा था, अच्छे से एंजॉय करके 6,000 में हो रहा, तुमने जबरदस्ती का कुछ भी फालतू खर्चा करके 10,000 रुपये खत्म कर दिया। ये रिस्क फैक्टर है कंपनी चालू करने के टाइम पे भी, ये रिस्क फैक्टर है कंपनी चालू करने के टाइम पे भी। इसमें आता है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। हम लोग फिक्स और वर्किंग कैपिटल को नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। पहले सुन लो, मैं अभी खत्म नहीं कर रहा हूँ लेक्चर, तुम लोग टेंशन मत लो, बंद नहीं करने का ऐसा। जैसे मेरा सुनते हो तुम लोग कि सर नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट करने वाले, बंद करो, चलो हो गया लेक्चर, मतलब इशू वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बदाम देके खत्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल दोनों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले जान लो कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है। कंपनी हम लोग जब चालू करते हैं तो कंपनी का क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितने लोग लगेंगे, कितनी बड़ी कंपनी लगेगी, कितना मशीन लगेगा, कितने स्टाफ लगेंगे, क्या लेबर्स लगेगा, कितने ट्रक्स लगेंगे, किधर किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, किधर किधर हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, हर चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, हर चीज़ का डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालना जरूरी है। जस्ट बिकॉज योर कंपनी कैन ओनली अर्न प्रॉफिट। टेक अ 30 सेकेंड्स ब्रेक। You continue with your break. My turn. ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपनी जो प्रॉफिट करेगी, वो प्रॉफिट उनका तभी उनको प्रॉपर तरीके से विएबल होगा, तब प्रॉपर तरीके से उनको तभी समझ में आएगा जब उन लोगों ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया है। तुमने पता लगाया कि तुम्हारी कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं, क्या क्या अनफिनिश्ड गुड्स लगने वाले हैं जिसको तुमको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है। तुमको पता, क्या ट्रक का आवाज़ करते रहते लोग, तुमको पता लगाना है कि क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कितनी मशीन्स लगेगी, कितने लेबर्स, कितने ऑफिसर्स, कौन सी बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग, उसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी, हर चीज़ का खर्चा तुमको कैलकुलेट करना है। कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बिकेंगे, प्रोडक्ट बनाने को कितना टाइम लगेगा, हर चीज़ का प्रॉपर एनालिसिस निकाल के तुमको एक कंक्लूजन पे आना है कि हमको इतने फंड की ज़रूरत है। जैसे मैं कंक्लूजन पे आया था कि हमको 10,000 रुपये की जरूरत है गोवा में 8 दिन के लिए, वैसे ही कंपनी चालू करने के टाइम पे तुमको समझ जाना है कि तुमको कंपनी में आज की तारीख में और आने वाले टाइम पे कितने पैसे की जरूरत पड़ सकती है। दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। कितना पैसा लगेगा और उस पैसे में से कितना वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल होगा वो भी डिटरमाइन करना है। समझ में आया? यहाँ पर भी वही सेम रिस्क अप्लाई होता है। अगर तुमने सब डिटरमाइन करके पैसा कम समझा कि हाँ हमको 1 करोड़ रुपया लगेगा, उतने में हम कंपनी चला लेंगे, और अगर वो आगे जाके कम पड़ गया तो कंपनी का स्मूथ फंक्शनिंग हिंड्रेंस हो सकता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस कम पड़ गया तो कंपनी स्मूथली नहीं चलेगी। पर तुमने यही पार्ट सोच करके कम नहीं पड़ना चाहिए, इसके लिए 2 करोड़ रुपया मांग लिया, पर कंपनी 1.2 करोड़ रुपए इसमें चल सकती थी और 20 लाख रुपए की जरूरत थी, पर तुमने एक्स्ट्रा 1 करोड़, अब वो जो पैसा एक्स्ट्रा आया है तुमने कंपनी में समझो काम करते करते वो पूरा 2 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, पर कंपनी में प्रॉफिट नहीं हुआ। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है विद दैट अमाउंट और द एक्चुअल अमाउंट, दोनों का जो लॉस होगा वो किसको बेयर करना पड़ेगा? द पर्सन हु इज स्टार्टिंग द कंपनी।
सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद द अमाउंट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, और यू कैन से दैट जितना भी तुम्हारा कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको तुमको प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि तुम उसको एकदम क्लोज टू प्रॉपर लेकर आने की कोशिश करो. ओके, सो वाइंडिंग अप माय लेक्चर ओवर हियर. आई गेस 30 मिनट्स का लेक्चर हो गया रहेगा या उससे भी ज़्यादा का हुआ रहेगा, आई डोंट नो. सो 30 मिनट्स का ही हुआ है, 31-32 मिनट्स का हुआ है. सो आई गेस तुम लोग को समझ में आया है. आई गेस नहीं, आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड द लेक्चर. मैंने थोड़ा सा उसको एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की है और मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स मेरे भी ज़्यादा होने वाले नहीं. आई एम गोइंग टू टेक द इंग्लिश लेक्चर फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, सो ज़्यादा होगा नहीं. एंड सेकेंडली 9th स्टैंडर्ड के भी लेक्चर्स हो नहीं रहे. 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर्स लेने वाला हूँ मैं एवरी ऑल्टरनेट डे. फ्रॉम मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैथ्स एज वेल. सो मैथ्स स्टूडेंट्स डोंट वरी, तुम लोग का पोर्शन कंप्लीट होने वाला है टाइम पे, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मैथ्स का जो लेक्चर होगा वो डेली आएगा, वसी सर लेने वाले हैं. जो भी रहेगा मैथ्स 1 मैथ्स 2 वो उनके ऊपर है. मैंने उनको टेक्स्ट सबमिट कर दिया, उन्होंने तुम्हारे लिए पढ़ाई करना चालू कर दिया है. सो विद दैट सेड, इफ़ यू हैव लाइक द लेक्चर, उसको लाइक करना मत भूलना. पसंद आया तो लाइक करके जाओ, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो, पर डिसलाइक करना नहीं है. यहाँ तक देखने के बाद तुम लोग को ऑब्वियसली पसंद आया होगा. अगर नहीं पसंद आया तो यहाँ तक देखे नहीं होंगे तुम लोग. सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नहीं हो इस चैनल पे तो, और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, शेयर करो, और बस.